Hey friends, welcome to September. प्रिय मित्रों, सितंबर में आपका स्वागत है। God is going to give us clear vision and clear eyes this month. परमेश्वर हमें इस माह में स्पष्ट दृष्टि और स्पष्ट आंखें We're देगा। going to see clearly and sharply. हम बहुत स्पष्ट रूप से देखने पाएंगे। In Job 39, 27 and 29, अय्यूब अध्याय 39, 27 और 29वें वचन में the Bible says, "Is it at your command, Lord, that the eagle rises to the heights to make its nest?" क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। From there it hunts its prey, वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, keeping watch with piercing eyes. वहां से अपने अहेर को ताक लेता है। This is the piercing eyes which God is giving us. और यही आंखों से दूर तक देखने की क्षमता परमेश्वर देना To चाहता है, see clearly, ताकि स्पष्ट रूप से देखें। to see its food. Every day God gives these piercing eyes to the eagle. अपने भोजन को देखने के लिए उकाब को परमेश्वर इस प्रकार की स्पष्ट दृष्टि देता है। In Matthew, I think chapter 6, we read, अब मैं सोचता हूँ मत्ती 6 अध्याय में हम देखते हैं, it is God who feeds the वह birds परमेश्वर है जो चिड़ियों को खाना देता and है takes care of them daily. और रोज उनका ख्याल रखता है। He prepares the food for the वह eagles उनके लिए भोजन को तैयार करता and है makes the eagles see clearly और उकाब को स्पष्ट दृष्टि देता the है, right food for it, सही भोजन को how to obtain it. किस प्रकार से उसे प्राप्त करे। That is going to be the same in our life. और यही हमारे जीवन में भी होने पाएगा। There are so many types of food we go after, हम कई प्रकार के भोजन की तलाश में जाते हैं, not just the physical food, ना सिर्फ शारीरिक भोजन, but so many things that are needed in our life. लेकिन वो सब कुछ जो हमारे जीवन की आवश्यकता है, Our career decisions, हमारे करियर का निर्णय, the things we like, the things we want to buy, वह चीज जो हमें पसंद है और उसे खरीदना चाहते हैं, and the people who we need to be surrounded with. और वह लोग जो हम अपने आसपास चाहते हैं, In all these things, इन सभी बातों में God wants us to have piercing eyes to choose the right food. परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास स्पष्ट दृष्टि हो ताकि सही निर्णय हम ले What पाएं। does our human eyes look at in this world? हमारी संसारिक आंखें इस दुनिया में क्या देखती है? There was a psychologist who wanted to work with 10 people. एक मनोचिकित्सक 10 लोगों के साथ कार्य करना चाहता था। He showed them a diagram. उसने एक चित्र दिखाया There was a bunch of pictures in it. और उसमें बहुत सारे चित्र थे, One was a treasure chest, जिसमें एक खजाने की पेटी थी which was in black and white. जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, But all the other pictures were in color, लेकिन बाकी सभी चित्र रंगीन थे, beautiful colors. सुंदर रंग में, And those were different things that were good for people in their life. और वो सभी वो चीज थे जो जीवन में अच्छाई के लिए है। Picture of a happy family, खुशहाल परिवार का चित्र, picture of a trophy, एक ट्रॉफी का चित्र, picture of a wonderful big feast. एक बड़े जेवनार का चित्र। So he asked all the 10 of them, what would you most want out of all these pictures? और उस मनोचिकित्सक ने पूछा कि तुम इन सभी चीजों में से क्या लेना चाहोगे? Amazingly, out of all the colorful and good things, और बड़े आश्चर्य रूप से उन सभी रंगीन चित्रों में 7 of them chose only the treasure chest, which was in just black and white and gray picture. 7 लोगों ने उस खजाने की पेटी को चुना जो ब्लैक एंड व्हाइट में थी। Their eyes were attracted to the treasure. उनकी नजरें आकर्षित हो गई उस खजाने की ओर। That is how our eyes operate, my friends. मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से हमारी आंखें कार्य करती Out है। of all the good things that we need and God has kept for our life, उन सभी भली वस्तु में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है, our eyes are attracted to the pleasures of this world. इस संसार के लोभ में आकर्षित होती है हमारी आंख। Why? क्यों? In 2 Corinthians 4:4, दूसरा कुरिन्थी 4:4 it says Satan, who is the god of this world, वहां कहता है शैतान जो इस संसार का ईश्वर है, has blinded the minds of those who don't believe. अविश्वासियों की बुद्धि को अंधी कर दिया है They are unable to see the glorious light of the good news. और वे अनजान है परमेश्वर के सुसमाचार की उस महान महिमा से, Glorious light of Christ Jesus यीशु के महिमामय प्रकाश को, and what he brings to his people. जो अपने लोगों के लिए लेकर आता They are है। unable to see it. वे उसे नहीं देख पा रहे हैं। Our eyes become blinded. हमारी आंखें अंधी हो गई है। They only see the things of the pleasures of their heart. वो सिर्फ अपने दिल की खुशियां देख रहे हैं, Whatever will pleasure them.
वह सब कुछ जो उन्हें आनंदित करे, things that attracts their eyes with वे lust, चीजें जो उनकी आंखों को वासना से आकर्षित करती है, beauty of the lust of this world, इस दुनिया की वासना की सुंदरता, and things of the thoughtful ways that are good for their mind. और उन बातों के लिए विचारशील तरीके जो उनके दिमाग के लिए अच्छी है। Thinking, if I take this job, I'll get a lot of money, or if I go there, I'll get so much more यह recognition. सोचते हुए कि यदि इस नौकरी में मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा या वहां गया तो मुझे ज्यादा पहचान मिलेगा, Whatever our own mind directs us वह to. सब कुछ जो हमारा दिमाग हमें निर्देश देता है, This is what these eyes lead us to. और इसी प्रकार से हमारी दृष्टि हमारी अगुवाई करती है। When Jonah was distracted from the Lord, जब योना परमेश्वर से दूर हो गया, his eyes also directed him to a wrongful way, which was not the path of God. उसकी आंखों ने भी उसे उस दिशा में लेकर गया जो सही रास्ता नहीं था। He lost his way. उसने अपने रास्ते को खो The दिया। devil is able to trick us and tempt us, शैतान हमें धोखा देने और लुभाने में सक्षम to है, make us see with our eyes ताकि हम अपनी आंखों से देखें and say, go after this. और कहें कि जाओ, इसके पीछे जाओ। He said that to Samson और यही चीज उसने शिमशोन से कहा, by making him fall into the lust of the girl ताकि उस स्त्री के वासना में उसे फंसाकर and losing all the God-given strength. और परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ को खोकर He distracts especially the children of God परमेश्वर की संतानों को विचलित करके and makes us see with our eyes and makes us blind to the eyes of faith. और विश्वास की आंखों को अंधी कर कर और अपनी आंखों से देखने पर मजबूर कर कर God makes us see with the eyes of faith. परमेश्वर हमें विश्वास की आंखें देता है, Believing in Him, receiving from उस Him. पर विश्वास करने और उससे ग्रहण करने के लिए। God wants us to see clearly today through those spiritual eyes. परमेश्वर चाहता है कि हम स्पष्ट रूप से उन आत्मिक आंखों से देखें, Longing for food from the Lord alone. सिर्फ परमेश्वर की ओर उस भोजन की आस What do में। you want to give me today, Lord? आप मुझे क्या देना चाहते हैं I परमेश्वर? long for food from you. मैं तेरी ओर देखता हूँ, Like the eagle longs for food dwelling in the heights. जिस प्रकार से उकाब ऊपर से भोजन को देखता When you है। ask Him for food every day, जब आप रोज उससे भोजन मांगेंगे, for whatever you need in your life. जो कुछ भी आपकी जीवन में आवश्यकता है, Psalm 103:5 says, भजन संहिता 103:5 कहता है, He satisfies your desires with good things, वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, so that your youth is renewed like the eagles. जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो He जाती है। keeps you young like the eagles. वो उकाब की नाई जवान रखता है And He satisfies your desires. और वह आपकी लालसाओं को तृप्त करता है। Your desires are not unheard by the Lord. आपकी इच्छाएं परमेश्वर से अनसुनी नहीं है, Looks at your वह desires आपकी लालसाओं को देखता है and He gives you good things. और वह आपको भली वस्तुएं देता है। Good things that He has for you. वह भली वस्तु जो उसके पास है, He will fulfill and make your desires overflow वो आपकी इच्छाओं को परिपूर्ण करेगा, more than you imagine. आपकी कल्पनाओं से अधिक। Higher are the ways of the Lord. परमेश्वर की योजनाएं बहुत ऊंची है। There was a boy in Delhi एक व्यक्ति है दिल्ली में who lost his way, जो अपने मार्ग से भटक गया, wanted to rise up in his life but was a failure in his studies. अपने जीवन में उठना चाहता था लेकिन अपने पढ़ाई के क्षेत्र में गिरता चला गया And there was so much chaos and depression in their family life. और उनके पारिवारिक जीवन में काफी समस्याएं और गड़बड़ियां थी। His mother knew about the Jesus Calls Prayer Tower at that time. उसकी माता को यीशु बुलाता सेवकाई के विषय में जानकारी थी And she went there and brought her son along. और वो खुद भी वहां गई और अपने बेटे को भी लेकर आई। As she was listening to the word of God in those meetings, और उस सभा में जिस प्रकार से वो परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, her heart felt so much peace and something new in her life. उसके मन में एक अद्भुत शांति आई और जीवन में कुछ नया हो गया। She forgot about all her worries, अपने सभी चिंताओं के विषय में वो भूल गई held on to this love of Jesus. और परमेश्वर के प्रेम में बंध गई। And when her son also heard the message, जब उसके पुत्र ने भी इस संदेश को सुना, he became transformed with the love of Jesus. परमेश्वर के प्रेम से वो परिवर्तित हो गया From that moment, as he dedicated his life to God, और उसी समय से उसने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया। God blessed his study, परमेश्वर ने उसकी पढ़ाई को आशीषित turned किया, around all his हर failures, एक उसकी निराशाओं को बदल दिया। made him complete his school and degree after degree after that, न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई लेकिन डिग्री के बाद डिग्री वो करता चला for गया him to complete masters. और अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट की And और today he's working in a high job, और आज बहुत उच्च स्थान पर कार्यरत है, very well paid job. बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी। And also, और God is making him serve with the power of God, परमेश्वर उसे सेवकाई ले रहा है अपनी सामर्थ के द्वारा, with the anointing.
अभिषेक के द्वारा to lead so many young people. बहुत सारे जवानों की अगुवाई करने के लिए God's power had come into his life, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आ गई making him see clear vision. ताकि वो स्पष्ट रूप से देख पाए The things God had for him, जो परमेश्वर के पास उसके लिए थी, to focus in it, ताकि अपने ध्यान को केंद्रित करे receive it. और उसे ग्रहण करे। That's what he has in store for us. और यही हमारे लिए उसके पास है। Your life will not fail, my friend. आपकी जिंदगी निराश नहीं होगी मेरे दोस्तों। Don't worry about not getting what you want. आप चिंता ना करें जो आपको नहीं मिल रहा है। The food that God has prepared for you is great. जो भोजन परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है It will satisfy you. वो आपको तृप्त करेगा। I know you're hungry today. मुझे मालूम है आज भूखे हैं आप। Cast your burdens on the Lord अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो and receive the food that He gives every day. और उस भोजन को ग्रहण करें जो प्रतिदिन वो आपको देता Shall we है। ask for this clear eyesight आज हम अपने स्पष्ट दृष्टि को to मांगे be focused on God? ताकि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। Loving Lord, प्रेमी we परमेश्वर, have tried so many things in this world. हमने इस संसार में बहुत सारी चीजों को प्रयास Nothing किया satisfies us, Lord. लेकिन किसी ने हमें तृप्त नहीं किया। Nothing is giving us victory, Lord. हमें कोई भी जय नहीं दे रहा है। Nothing is taking us to the heights, Lord. कोई भी हमें ऊंचाई पर नहीं ले जा रहा है। Lord, as the eagle waits for its food from you every day, परमेश्वर जिस प्रकार से उकाब इंतजार करता है अपने भोजन का, Lord, we wait upon you. परमेश्वर हम आपकी बाट जोते Give us a हैं। hungry heart depending on you, Lord. हमें एक भूखा हृदय दीजिए जो आप पर निर्भर है। My God will give me the food for today. मेरा परमेश्वर मुझे आज की रोटी देगा He will satisfy my desire. और वो मेरी लालसाओं को तृप्त For करेगा। this, Lord, इसलिए we परमेश्वर pray for our eyesight, हम अपनी दृष्टि के लिए प्रार्थना not करते to हैं, depend on our human eyes, हमारी संसारिक दृष्टि पर नहीं not to be distracted by the things of this और world, इस संसार की ध्यान भटकाने वाली बातों पर भी the नहीं। lust of this world. संसार की Get लालसाएं rid of it, Lord. इससे आजाद करे The परमेश्वर। pleasures of the heart. हमारे दिल की खुशी Get rid of it, हमें Lord. इससे आजाद करें। Lord, the ways of our own mind. हमारे स्वयं की Let us सोच turn away from हम it उससे मुड़ने पाए and let us look to only heavenly things. और सिर्फ स्वर्गीय बातों की ओर दृष्टि When we करें। look to you, we receive heavenly जब manna, हम आपकी ओर देखते हैं हम स्वर्गीय मन्ना को प्राप्त करते हैं। the tastiest of things. उस Lord. सभी बातों से Let us स्वादिष्ट receive it must. आइए इसे ग्रहण करें। Give the best for their education. उनके पढ़ाई के लिए उत्तम दें, Give them the best for their family. उनके परिवार के लिए उत्तमता को दें, Give them the best for their future. उनके भविष्य के लिए उत्तम दें, Best in their talent. उनके प्रतिभा में उत्तम Let them दें outshine everybody, और Lord. वे औरों से अधिक चमकने Let पाए them see this path very और clearly. वे इस रास्ते को स्पष्ट रूप में देखने पाए। Receive spiritual eyes right now. हम आत्मिक दृष्टि को इसी वक्त ग्रहण Holy करते Spirit, हैं। help us see. पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करें, Get rid of our human eyesight. हमारी संसारिक दृष्टि से And आजाद let us get करें into the eyesight led by God. और वो परमेश्वर की दृष्टि को ग्रहण करने पाए To see more than what we see with our eyes. ताकि हम अपनी आंखों से अधिक देखने पाए To see the heavenly treasures. वो स्वर्गीय खजाने की ओर। Heavenly food. स्वर्गीय We भोजन receive it, Lord. हम ग्रहण करते हैं। Sharp eyes. स्पष्ट आंखें, Clear vision. स्पष्ट दर्शन, Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। May God bless you with this sharp vision this month, my friend. इस माह में परमेश्वर आपको स्पष्ट दृष्टि देने पाए दोस्तों, And let us know how the Lord has led you to great heights by testifying to this email. और इस ईमेल पर हमें गवाही लिखकर बताएं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया May है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।